Okay, so in the last class we have discussed about concentration cell, and the we have discussed both the concentration cell without transparent, and let's try to apply to some of the questions. So I have discussed about last time was the GATE 2011 questions, question number 17. Okay, so in this question number 17, for the concentration cell, the M and M plus, the aqueous medium concentration is 0.01 mole per dm cube. Then you have double bar M aqueous T 0.1 mole dm cube. Okay, so now as you know, this particular concentration cell is without the transparency. Okay, so when you look at the the system from here, you can easily determine the EMF. So the question is EMF has to be determined. Okay, जो कंसंट्रेशन सेल में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने रिएक्शंस देखना है ना, विदाउट ट्रांसपोर्ट नंबर है, विदाउट ट्रांसफरेंट है, तो हम कौन सा रिएक्शन देखेंगे, कैथोड एंड एनोड देखेंगे. सो नंबर वन यू हैव टू टॉक अबाउट दी कैथोड रिएक्शंस और एनोड रिएक्शंस. सो लेट अस से एनोड reactions, right? Some settings are there. सर पेज नंबर बताइए. ओके, पेज नंबर है 39. पेज नंबर है 39. ओके, मेरी यहाँ 39 है, आपके यहाँ 40 हो सकता है. ठीक है. या नाउ एनोड रिएक्शन में क्या है, एनोड रिएक्शन में यू हैव टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन. सो एम is oxidizing, M plus 1. Now concentration is 0.01. Okay, and losing 1 electron. Now B is the cathode reaction. Cathode reaction where your reduction can be done. So M positive, concentration कौन सा है राइट में, सॉरी 1.1. Let me just correct it. So this should be 0.1 जो आपकी राइट साइड में है. Okay, so this is 0.1 because this is 0.1 given here. This is 0.01 is given here. So 0.1 concentration is getting 1 electrons to convert into M. Okay, so M is a solid basically, so you can use solid. Okay, now once you obtain, then you can also talk about the cell reaction. Cell reaction common term cancel हो जाएगा and uncommon will be. So ये cancel हो जाएंगे, electron electron cancel हो जाएगा. So overall transfer is your M positive 0.1 goes to the, यहाँ पे भी equilibrium लिखो सारे, it will be always better. So M 0.1. So your migration is from right to left. Is it fine? Your migration is from right to left. Okay, so therefore on the basis of the change, the Nernst equation E equals to minus RT upon F, इलेक्ट्रॉन एक ही है तो F, so ln concentration of
concentration of M positive 0.01 is the product and concentration is M positive 0.1. ओके, सो ये concentration टर्म में लिख सकते हैं. मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ. RT अपॉन F ln 0.01 upon 0.1 concentration. ओके, सो दिस इज नथिंग बट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1/10 का डिफरेंस है. सो दिस इज नथिंग बट 1/10. सो दिस इज फाउंड टू बी अल्टीमेटली माइनस, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन F log 1/T. सो इसको हम पॉजिटिव साइड में लिखें तो 2.303 RT अपॉन F log 10. ठीक है, log 10 तो 1 है, तो ऑब्वियसली योर क्वेश्चन इज 2.303 RT अपॉन F. ठीक है, सो योर आंसर इज A. So your answer is A, is because of these. So you have to explain the answer on the basis of your calculation. So you can do all these calculations by using your concept. जो concept हम लोगों ने discussion किया है, उस concept को लगा के you can explain how this answer come. Okay, this is how you can solve the questions. So let us try to do little more different. I'll do another, there are a lot of different models to calculate. Let me take different one. Okay. So let me talk about this question number. ये अलग question है. Let us say find out, yes, बच्चे, if somebody is setting, सर एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करिए. ओके, ठीक है बच्चे, ये जो मैंने कुछ खास इसमें ज़्यादा किया नहीं है. वी हैव डन, हमने जो किया है, जो हमारी डिराइवेशंस, जो फार्मूलाज हैं वही लगाए हैं. सबसे पहले दोनों इस सेल को देखिए. इस सेल के अंदर 2 हाफ सेल है. ठीक है, दोनों कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग हैं. नाउ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को हमने सॉल्ब्रिज लगाए हुए हैं, तो अलग अलग सिस्टम है. इसमें आप जैसे ही सॉल्ब्रिज देखते ही आपको ये पता लगा सकता है, दिस कंसंट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है. ट्रांसफरेंट, ठीक है, ये आपको समझना है. नाउ विदाउट ट्रांसफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट का माइग्रेशन तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सिस्टम के अंदर 2 सॉल्यूशन मिक्स नहीं हो रहा है. तो आपको फोकस कहाँ पर करना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रो रिएक्शन के ऊपर फोकस करना है. इलेक्ट्रो रिएक्शन में क्या क्या होगा, एक लेफ्ट साइड में जो है वो एनोड रिएक्शन होंगे, राइट साइड में कौन सा होगा, जो रिडक्शन होंगे, कैथोड रिएक्शन होगा. लेफ्ट साइड में आप देखो, लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 की कंसंट्रेशन है. तो जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे ये मेटल जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये सॉल्यूशन में जाएगा, तो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन में जाएंगे. तो मैंने M को +1 0.01 कंसंट्रेशन में हमने लिख दिया है. ठीक है, अब ये हो गया एनोड का रिएक्शन. अब कैथोड का रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड का रिएक्शन में रिडक्शन होंगे. तो राइट हैंड साइड में कौन सा सोल्यूशन है, 0.1 की कंसंट्रेशन की. तो M पॉजिटिव जो है वो 0.1 की कंसंट्रेशन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और मेटल के ऊपर डिपॉजिट करेंगे. ठीक है, तो ये M सॉलिड हो गया. अब कैथोड एनोड हमने अलग अलग लिखा है, तो सम करेंगे, हमने शुरू में बोला ही है. तो कॉमन टर्म कैंसिल कर दो, और ओवरऑल चेंजेस क्या नज़र आ रहा है कंसंट्रेशन सेल में,
ये नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ओवरऑल ट्रांसफर हमारी जो चेंजेस है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि माइग्रेशन होता है, ट्रांसफर होता है मटेरियल, मैटर, सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 1 साइड जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। नाउ ये जो ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंजेस आएगा, क्योंकि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है। जब आप मैटर ट्रांसफर करते हैं तो देयर विल बी ए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, सो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या नर्स इक्वेशन लिखते हैं, कंसंट्रेशन सेल में हम ये लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस आर टी एफ। अब N1 है इसलिए हमने 1 को 1 ही लिखा है यहाँ पे, क्योंकि N where the electron is only 1, N is 1, so therefore माइनस आर टी अपॉन एफ। और ये आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैंने M पॉजिटिव 0.01 कॉन्सेंट्रेशन लिखा, ये M पॉजिटिव 0.1 कॉन्सेंट्रेशन लिखा। उस कॉन्सेंट्रेशन को मैंने सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दोनों की डिफरेंसेस जो है, देखो ये ओनली 1/10 वाला रिलेशन है, दोनों का कैंसिल करोगे तब भी, ठीक है ना। सो हम उसको 1/10 में ले सकते हैं। उसके बाद हमने नेचुरल लॉ में कन्वर्ट कर दिया। देन मैंने इस माइनस को हटाने के लिए मैंने इसको रिवर्स किया। 1/10 को मैं 10 में लिखूं तो वो नेगेटिव हट जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारा आ गया। log 10 का वैल्यू 1 होता है, सो देयरफॉर योर आंसर इज दिस। तो आंसर जो है कहाँ पे मैच हो रहा है, आपका गिवन जो पार्ट है उसका हमारा ए जो ऑप्शन है उसी के साथ मैच हो रहा है। सो मेरा आंसर ए है, जो मैं बता रहा हूँ। इज इट फाइन? यस। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो फाइंड आउट द EMF of the concentration cell given below at 25 degrees Celsius, right? Now the mercury, merciless chloride, hydrochloric acid 0.01 मोलर है। अब नाउ सिमिपम में मेम्ब्रेन है यहाँ पे भी, डॉट, ठीक है, डॉट लाइन। सो अब ये जो सिस्टम को देखते ही आप ये कह सकता है कि यहाँ पे विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, या आप ये कह सकते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफरेंट है, ठीक है। सो ये कंसंट्रेशन सेल कौन सा है, कंसंट्रेशन सेल विथ
Hello, can you see the screen, please? Hello, my internet connectivity is having little problems. That's why there's a problems. Okay, now can you see? Now is it visible? Okay, right. Okay, sorry. Okay, right. So what I am saying is, uh, the concentration cell with ट्रांसपेरेंस हैं ये क्वेश्चंस उसकी जो सेल नेचर जो है उसको देखते ही आप बता सकते हैं. दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू. Number one, so you have to consider both the transport, the transfer of the migration of the ions. ये सब हमारा reactions अब आप देखोगे. Now let me complete the questions. Provided that the membranes allow the migration of hydrogen ion only. Okay, hydrogen ion only. So you have to think about it here. Number one, क्या चीजें आपने देखना है इसमें? आपको एक तो सेल देखना है कि भाई सेल किस टाइप की सेल है. पहले तो कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंट है, सबसे पहले आपको देखना है. दूसरा, मेम्ब्रेन सिर्फ हाइड्रोजन आयन को ही ट्रांसफर करा रहा है, तो उसका माइग्रेशन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन का रहेगा, नॉट क्लोरीन का नहीं रहेगा. जैसे हम कंसंट्रेशन सेल में हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट होता है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेम्ब्रेन जो है सिर्फ माइग्रेशन हाइड्रोजन का ही करा रहा है, तो हमारा माइग्रेशन सिर्फ हाइड्रोजन का ही रहेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, so let me talk about this. Let us talk about the solutions of this. Now, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक तो आपको समझना है कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंट है, तो चेंजेस क्या क्या होगा. सो नाउ फर्स्ट थिंग इज द changes involved in the cell. इस सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं. ठीक है, नंबर वन इलेक्ट्रोड चेंज है, तो इलेक्ट्रोड चेंज आप लिखोगे. एक एनोड में क्या है, कैथोड में क्या है. एनोड में क्या है? एनोड में आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी रिएक्शन क्या है? मार्करी क्लोराइड. कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है. दिस विल gives to half of the markerous chloride, ठीक है, and giving 1 electron, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सेकेंड, कैथोड में क्या होगा? हाफ ऑफ द markerous get 1 electrons to convert into मार्करी प्लस क्लोराइड. अब क्लोराइड कौन सा है? राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो 0.1 कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन का होगा. ठीक है, ये तो हो गया कैथोड और एनोड की रिएक्शन. अब क्योंकि ये रिएक्शन जो है इसमें आपका विद ट्रांसपेरेंट है, तो माइग्रेशन होंगे. तो माइग्रेशन में सिर्फ मेम्ब्रेन किसको अलाउ कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को. सो हाइड्रोजन आयन की ट्रांसफर आप दिखाओगे. तो हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर मैंने आपको क्या बताया? आपका एनोड साइड से कैथोड के साइड में ऑलवेज मूव होगा. सो टी पॉजिटिव, ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन 0.01, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन moves towards the, ठीक है, 0.1
1 की तरफ मूव होगा व्हेन द करेंट इज पास थ्रू, जब आपका करेंट जो है पास करेंगे तब। ठीक है, अब नाउ ओवरऑल हमारा चेंजेस क्या होगा, ओवरऑल चेंजेस आप निकाल सकते हो। ठीक है, दैट यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, जो हमारा ओवरऑल चेंजेस में कॉमन टर्म निकाल दो, कॉमन टर्म निकाल दो, ये कॉमन है इलेक्ट्रॉन्स। यस बच्चे, इज समबडी इज राइटिंग, सर आवाज कट हो रहा है। इज स्टिल माय वॉइस नॉट क्लियर, कैन समबडी टेल मी? नो इट्स फाइन, ओके ओके, थैंक यू सो मच, लेट मी गो अहेड। सो हमारा कॉमन टर्म कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा वो हम आपको निकालना है। तो पहले क्या होगा, क्लोरीन की, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले क्लोरीन माइनस का है 0.01 मोलर प्लस टी पॉजिटिव, ठीक है, टी पॉजिटिव मोल जस्ट अ मिनट, टी मोल कितनी हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर है, तो टी मोल कैंसिल हो सकता है, सो देयर इज नो, हाँ है ना, टी मोल भी कैंसिल हो सकता है, इज अ कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो यू कैन राइट हाइड्रोजन 0.01 मोलर, ठीक है, इज मूविंग टूवर्ड्स, इधर क्या होगा, क्लोरीन की 0.1 मोलर प्लस जो है टी पॉजिटिव, सॉरी हाइड्रोजन टी पॉजिटिव कैंसिल हो गया है 0.1, मैंने शॉर्ट किया है, अदरवाइज टी पॉजिटिव बाद में भी कैंसिल कर सकते हो इफ यू विश। ओके, सो हमारे पास ओवरऑल कितना हो गया है, ओवरऑल ये आ गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो माइग्रेट हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल लिख रहा हूं मैं, आप पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग लिख सकते हो। सो ओवरऑल इज माइग्रेशन इज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, यहां से लेफ्ट से राइट। नाउ हमने निकालना है इसका कॉन्सेंट्रेशन ईएमएफ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेंजेस हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने E इक्वल्स टू माइनस आर टी, 25 हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.0591 लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी, अब दोनों साथ में हैं, हमने यहाँ पे ये लिख सकते हो। यस, पहले मैं लेट मी, हाँ एक किसी ने हाथ खड़ा किया है, लेट मी कंप्लीट दिस देन यू कैन आस्क मी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है प्रोडक्ट में क्या होगा, एक तो एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन की होंगे इनटू एक्टिविटी ऑफ द क्लोराइड आयन का होगा जो प्रोडक्ट में है, और एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस के होंगे इनटू एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन के होंगे। ठीक है, सो रिएक्टेंट जो है ये है और प्रोडक्ट हमारा ये है। सो हमारा -0.0591 लॉग हमारा प्रोडक्ट जो है 0.1 की है इंटू 0.1 अपॉन 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, आप इसमें कैलकुलेशन दे सकते हो, -0.0591 लॉग का वैल्यू है 0.01 होगा कंसंट्रेशन इसकी, और इसकी हो जाएगा आपका 0.0001। ठीक है, अब उसको हम कैंसिल करेंगे तो -0.0591 लॉग 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लॉग 100 का मतलब क्या है, 10⁻², तो मैं इसको 0.0591 लॉग 10⁻², इसका मतलब क्या हुआ, -0.50, सॉरी यहाँ पे 0.0
0591 into 2, so that is minus 0.1182 volts। ठीक है, तो मेरा जो आपका E जो है, E पोटेंशियल जो है ऑफ द सेल जो है माइनस 0.882 वोल्ट्स का है, ये हमने कैलकुलेट किया है। क्लियर? अब नाउ आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर ये तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये नेगेटिव आ गए हैं क्योंकि हमारा माइग्रेशन देखो लोअर एनर्जी से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारा सिस्टम के अंदर ऐसा दे रखा है, कंसंट्रेशन के हिसाब से दे रखा है, इसलिए हमने इस चीज को लिखा है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ रहा है हमको पता है कि ई सेल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रिवर्स रिएक्शन होना चाहिए क्योंकि ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, मगर हमारी सेल में इस तरह का दे रखा है और रिएक्शन प्रोसेस के अंदर हमने ये चेंजेस देखा है, तो इसलिए हमारा ये जो भी नेगेटिवली ये और कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट बिकम नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव आने का भी कहीं ना कहीं रीजन है। यस, मैं किसी ने हाथ खड़ा किया है, सो लेट मी जस्ट टेक हर क्वेश्चंस। यस, जिसने हाथ खड़ा किया है वो यस सर, इसी में ये है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, जबकि 0.1 से 0.01 नहीं होना चाहिए था ट्रांसफर नेट सेल रिएक्शन में भी। यस यस बेटा, वही तो मैंने आपको ये बताया है कि इसीलिए हमारा ई भी पॉजिटिव जो है नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ट्रांसफर जो होना है, जो हो रहा है, जो क्योंकि हमने तो क्वेश्चंस सेल जो कंसंट्रेशन सेल जो दे रखा है उसी हिसाब से हमने निकाले हैं, बट हमको एक्सपोंटेनियस करना है तो इन दोनों को रिवर्स कर देना। इन दोनों का कंसंट्रेशन को हम जो लेफ्ट में लिखा है उसको राइट में लिखो, राइट में जो लिखा है उसको लेफ्ट में लिखो, तब ये जो सिस्टम है ये एक्सपोंटेनियस में आएंगे। तो मैंने इसलिए एग्जांपल दिया है क्योंकि कल को आपको एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन डाले हैं, सो दैट योर माइंड कैन बी ओपन। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो गिवन है उसी हिसाब से निकालना है, वो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है, बट क्वेश्चन में एडिशन पूछता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये कन्वर्जन, ये ट्रांसफर, तो आप कह सकते हो कि ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपोंटेनियसली हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये सब इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो। यस, 2-3 लोग फिर हाथ खड़ा किए हैं, तो मैं आई एम टेकिंग क्वेश्चन बिकॉज दीज आर लिटिल कॉम्प्लेक्स, तो किसी को कंफ्यूज है तो क्लियर अभी कर लो। ठीक है, यस यस बेटा पूछिए, आपने हाथ खड़ा किया है, 5 नंबर से शुरू है आपका। कौन है? 587213। आपका आवाज नहीं आ रहा है हमको। आई could not get your questions. Should I mute you? यस, स्टेट में देख लेता हूं एक बार। सर इसमें मास ट्रांसफर कहाँ से होगा फिर? हाँ दिव्या जी, मैंने वही बताया है आपको कि आपका जब नेगेटिव आ ही रहा है तो ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल ट्रांसफर होना चाहिए, 0.1 से लेके 0.01 की तरफ जाना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि कंसंट्रेशन जिसकी हाई है लो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप टर्मिनल को चेंज कर दो तो आपके एक्सपोनेंशियल आ जाएंगे। क्लियर? विद ट्रांसपेरेंट विदाउट ट्रांसपेरेंट कैसे पता लगाएंगे? कौन पूछ रहा है बेटा? हाँ, नंबर वाले बच्चे। ऐसा है कि विद और विदाउट ट्रांसपेरेंट आपने कंसंट्रेशन सेल पढ़ा होगा, तब तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। यहाँ डबल लाइन लिखेंगे तो विदाउट ट्रांसपेरेंट होंगे, और इस तरह के डॉट लाइन लिखेंगे तो विद ट्रांसपेरेंट होंगे।
ठीक है। ये मैंने शुरू में बता दिया था। क्लियर? Any other doubt? Because today I'll start another concept. Okay, sir. Which ये क्या लिखा है? सोल ब्रिज से हाँ डबल बार लिखेंगे तो सोल ब्रिज, डबल बार नहीं लिखेंगे, डॉटेड लाइन लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे तो ये मेम्ब्रेन्स हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है। यस। सो आई होप कुछ असाइनमेंट वगैरह में और क्वेश्चंस हम डालेंगे, बाकी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लोग को समझ में कंसोलिडेशन सेल समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यस लिखिए, नहीं समझ में आए तो नो लिखिए, सो दैट आई विल जंप टू डिफरेंट टॉपिक टुडे। ओके, थैंक यू। ओके, कुछ लोग ने लिखा है, कुछ लोग ने नहीं लिखा है, एनीवे ठीक है, थैंक यू। आप लोग रिवाइज जरूर कीजिए, जितने भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी टॉक डिस्कस विद यू। आई विल बी कमिंग बैक टू दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली ऑन 4, सो उसमें और आप लोग जो हैं आई कैन गिव मोर टाइम इन इवनिंग टाइम, सो वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। नाउ let me start the new one, new conductance की तरफ मैं जा रहा हूँ, but before I start conductance I have to discuss with you little more important concept of electrolysis process. Why it is not coming down? Oh sorry. Okay. yes बच्चा एक और मैसेज किए हैं, सर ऑफलाइन कब से होगा? ये कोरोना कोरोना नहीं करेंगे तो ऑफलाइन हम भी चाहते हैं आप लोग से मिलके जो है डिस्कशन करें और आप लोग को जो है टीचिंग करें हैं, बट somehow we could not do that, so we are meeting online, ठीक है। Now today I will start a new one, not exactly conductance, but the starting point of the conductance. There are very two important focus. Let me just give you a brief idea about electrolytic process, because electrolytic process will be used for conductometric system. So I have also told you about this cell in the beginning. जब क्लास हमने शुरू किया था तो दो टाइप की हमने सेल पढ़े हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको बताया था कि नॉन एक्सपोनेंस केमिकल रिएक्शन को हम कैरी आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैं इसको दोबारा जो है लिख देता हूँ। तो इस अ सेल is a cell in which non-spontaneous chemical reactions is carried out with application of electrical current okay, or electricity, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये इसको हम ये भी मानते हैं कि इस ए डिवाइस टू कन्वर्ट फ्रॉम दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सो इसलिए हम इसको ये भी बताते हैं इस अ डिवाइस टू कन्वर्ट the device to convert electrical energy to chemical reactions or product, chemical reaction or chemical product, okay। so ये है। now
इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि करेंट इज यूज, बेसिकली करेंट इज यूज टू प्रोसेस द सिस्टम। तो प्रोसेस कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द electrolysis process of molten salt or sodium hydroxide. So let me discuss with you electrolysis of molten सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक सिंपल वाला है जो मैंने, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी बता दूंगा। सो लेट अस टॉक अबाउट सेल। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, प्लाटिनम डिप कर दिया। ठीक है, देन आई ऑल्सो कनेक्ट विद द प्लाटिनम। नाउ लेट अस सी these are the solution of sodium chloride. Sodium ions, chloride ions are present in the system. Now these are connected to a battery like this, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो नाउ इसको हम लेट अस से दिस इज नेगेटिव, छोटा लाइन जो है वो नेगेटिव है, बड़ा लाइन पॉजिटिव है कनेक्शन इसका। ठीक है, सो नाउ ये जो है इसको हम कहते हैं कैथोड, मैंने शुरू में भी शायद बताया है आपको, और ये आपका एनोड। सो गैल्वेनिक सेल में और दोनों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब नाउ द मोमेंट करेंट इज ट्रांसफर, करेंट जो है यहाँ से ये, दिस इज नथिंग बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है, पावर पॉइंट हो कनेक्शन हो सकता है। सो नाउ yes, so now once the current is supply, ठीक है, एक बार जब करंट सिस्टम के अंदर सप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कैथोड में क्या होगा। ठीक है, कैथोड में सोडियम आयंस जो सॉल्यूशन में है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। नेगेटिव, कैथोड में नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, तो आपको कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसमें। नाउ इट विल बिकम सोडियम मेटल्स। सो सोडियम मेटल डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट करेंगे, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। सो नाउ इट अंडरगो रिडक्शन। अब देखो कैथोड जो है जनरली हमारा पॉजिटिव होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये जो है नेगेटिव है। तो ये फर्क है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, बट जनरली हमारा गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा एनोड में क्या होगा, एनोड में लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन। एनोड जो है वो टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है, तो क्लोरीन आयन जो है वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो हाफ ऑफ द क्लोरीन gases with 1 electron loss. So this is nothing but oxidation. Okay, so overall reactions आपको क्या नजर आएगा, overall reaction will be sodium ion plus chloride ion moves to sodium metal plus half of the chlorine. Okay, this is nothing but the cell reaction. ठीक है, सो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है। सो एक्चुअली ये जो सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कन्वर्ट कराने के लिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, इसको जो है हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, और यही प्रोसेस की थ्रू सोडियम मेटल
जो निकालते हैं। ठीक है, सोडियम मेटल जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वेरी एग्रेसिव हैं, ये जो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होता है, तो सोडियम जो है जनरली डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल को हमारा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो अभी भी ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ये पुराना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी भी सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, तो यही प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, क्लियर। नाउ लेट मी ऑल्सो गिव यू one more example, example number 2. Now here let me talk about the, yes, some of you are writing clear, okay, scroll above, ठीक है, if you could not write, let me just, okay, आप लोग लिख लो, then we continue. Okay, is it done? ठीक है, और नीचे करना है। Yes, should I go ahead? Yes, with your permission, should I go ahead? Okay, ठीक है। So now again electrolysis process. Electrolysis of aqueous sodium hydroxide. Okay, so now similarly the process is the same, electric current and chemical reaction. So let me draw another cell. So you have put the system here. इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी साइड में रख सकते हो, इट्स नॉट वेरी नो फिक्स, आप लेफ्ट राइट जैसे भी रखना चाहे रख सकते हो इसमें। पार्टिकुलरली फॉर द इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल में हम एनोड को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी इलेक्ट्रोलाइटिंग में ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है और कन्वेंशन नहीं है। सो अगेन देखो, नेगेटिव जो है ऑलवेज छोटा लाइन वाला नेगेटिव है और बड़ा लाइन जो है पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ये आपका कैथोड होगा क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका एनोड होगा। ठीक है, अब आपकी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ये सॉल्यूशन है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब नाउ द मोमेंट इलेक्ट्रिक इज सप्लाई, हमारा इलेक्ट्रिक स्विच ऑन हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा सबसे पहले एनोड, एनोड में क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सिल is giving oxygen, so oxygen evolution takes place gases के फॉर्म में और लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर उसके बाद कैथोड में क्या होगा,
कैथेड में हो रहा है 4 हाइड्रोजन वाटर is getting 4 electrons to convert into twice of hydrogen gas plus 4 hydroxyl, right? Okay, so this is what you can see now. Okay, so these are the reactions you can expect. और इसका आप सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी ई पोटेंशियल जो है, दिस ई पोटेंशियल इज नथिंग बट -0.40 वोल्ट, और इसका ई पोटेंशियल जो है हमारा जो वैल्यू है वो है E equals to E standard is equals to -0.83. Okay, 83 volts. So even you can calculate the cell potential of these kind of reactions. Okay, so ultimately you can say cell potential is equals to E cathode plus E anode. ठीक है, so that you can easily calculate it, right? So you can do all this process. ठीक है, ये बेसिकली -1.23 वोल्ट्स आएंगे. सो ऑब्वियसली इससे क्या है, नॉन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है. तो मैंने आपको क्या बोला था, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं नॉन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. सो दीज प्रोसेस आर ऑलवेज नॉन एक्सपोनेंशियल इन द सिस्टम इन जनरल. ओके, क्लियर? इज इट फाइन? राइट. सो ऑलवेज सेल जो है, ई सेल पोटेंशियल जो है in this particularly for the electrolytic cell are always less than 0, and the delta G is greater than 0. इसका मतलब क्या है, the process is non-exponential. It can only be carried out with the help of external source of energy. Clear? दूसरा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सिस्टम के अंदर जब प्रोसेस करेंगे तो कैथोड में क्या रिएक्शन होता है और एनोड में क्या रिएक्शन होता है. तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, हम एनोड में हम कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, और कैथोड में आप कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. सो कल को ये क्वेश्चंस आपकी उसमें आ सकता है कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन प्लेस, तो आपकी कैथोड में ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा, एनोड में ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा, और कैथोड में हाइड्रोजन इवोल्यूशन होंगी. ठीक है, क्लियर? दिस इज non-exponential. क्लियर है? If you clear it, kindly give me a message or chat. Yeah, okay. Thank you. So let me talk about little important one. This is very important. इस बार क्वेश्चन भी आए थे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे. Faraday's law of electrolysis. ठीक है, जो भी हमने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम पढ़ा है उसमें फराडेस की लॉ है, माइकल फराडेस की. ठीक है, माइकल फराडेस ने क्या किया है और कैसे इसने एस्टैब्लिश किया है उसके बारे में वी विल डिस्कस इट. माइकल फराडे जो है इसने क्वांटिटेटिव रिलेशन डेवलप किया है इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल चेंजेस के ऊपर. ठीक है, तो माइकल फराडेस डिस्क्राइब दी क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू, क्वांटिटेटिव relationship between
कितना करेंट, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड chemical changes. Chemical changes in terms of two laws. मतलब करंट कितना डालेंगे तो कितना आपके केमिकल चेंजेस होगा, इसके बारे में उसने दो लोग डिराइव करके और रिलेशन फाइंड आउट किया है. सो नंबर 1, द माइकल फैराडेज और फैराडेज फर्स्ट लॉ. Faraday's first law. Okay. Now, what it mean by Faraday's first law? Faraday's first law क्या कहता है? यह कहता है mass of chemical substance deposited or altered at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity, ठीक है, और charges pass through the electrolytic solution. ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितना मास डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, और चेंजेस होगा जो इलेक्ट्रोड में है वो डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे. ठीक है. सो मैथमेटिकली इसको हम क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है. W क्या है, W वेयर W इज द मास और Q इज द चार्ज. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ है, W जो है, W is equals to, W is directly proportional to even IT also, since Q is equals to IT. I क्या है, where I is the current and T is the time. ठीक है, T is the time, right? So हम इसको W is equals to ZIT भी लिख सकते हैं और ZQ भी लिख सकते हैं. नाउ Z क्या है, Z is nothing but proportionality constant. Z is equal to proportionality constant. नाउ इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा इसका जो नाम है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम में भी जानते हैं इसको. ठीक है, अंडरस्टूड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, Z is equals to equivalent weight, ठीक है, EQ upon Faraday F. So there is nothing but E equivalent upon F. ठीक है, ये रिलेशन. सो ये रिलेशन जो हैं
sum time equivalent weight upon 96500 कॉलम पर मोल, ठीक है, इससे भी अंडरस्टूड है बिकॉज इट्स द सेम थिंग. Is it clear? So Z is also known as M molecular weight upon N, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इससे आता है, फिर FP मानते हैं, ठीक है. इसको मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट मोलिकुलर वेट अपॉन NF, ठीक है. सो N क्या है? N इज नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट और F, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली. सो ओवरऑल W इज इक्वल्स टू कि MNF इंटू ITB लिखते हैं, ठीक है. तो आप जो भी फॉर्मूलाज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हो. क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इसमें बहुत क्वेश्चंस आजकल आ रहा है, तो यू हैव टू बी लिटिल अवेयर ऑफ दिस फैक्टर्स सो दैट यू कैन अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है. आई होप सबने लिख लिया. सर लास्ट लाइन क्या रिलेशन लिखा है? लास्ट लाइन का रिलेशन जो है W इक्वल टू M अपॉन NF इंटू IT, M अपॉन NF इंटू Q, क्योंकि IT जो है वो क्या है? Q है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है. इफ यू विश यू कैन ऑल्सो एड वन मोर. आई कैन राइट दिस ऑन F इंटू Q भी लिख सकते हैं, ओके. सर एक बार रिपीट कर दो. इन डेफिनेशन केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट और से सर क्या लिखा है? अल्टर लिखा है, अल्टर, ALTERED, अल्टर, चेंजेस. अल्टर मतलब चेंजेस. यस, किसी ने हाथ खड़ा किया शायद. पूजा, हैव यू राइज योर हैंड? यू कैन अनम्यूट इफ यू राइज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क मी. यस पूजा था, कौन था? If somebody want to ask me something, is it done? Okay. So now let me go ahead. Yes. Pooja Patel want to ask, explain it once. ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई विल कम टू दी पॉइंट, ठीक है. देखो ये जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ये पढ़ा कि कैथोड की साइड में इलेक्ट्रोड डिपोजिशन होता है, मतलब मेटल डिपोजिशन होता है. तो मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट और अल्टर चेंजेस जो इलेक्ट्रोड में हो सकता है, क्योंकि अल्टर का मतलब ये है कि डिपॉजिट भी हो सकता है या डिसॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि मान लो हम एनोड की साइड में करेंगे, एनोड में तो डिसॉल्व होगा, है ना. तो इसलिए डिपॉजिट और अल्टर, ठीक है, is directly proportional to quantity of electricity or charges passed through the electrolytic solution. इसका मतलब यही है कि आप कितनी करंट ट्रांसफर किए हो उस सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि W जो है, जो है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी चेंज और डिपॉजिट जो है और डिसॉल्व.
जो हैं वो क्या करेंगे, वो क्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो इसलिए डायरेक्टली रिलेशन है दोनों के बीच में। नाउ क्यू जो है वो करेंट इनटू टाइम की रिलेशन है। सो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी है। तो इसलिए W इक्वल टू W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT लिख सकता है, राइट। नाउ उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज Z है, ठीक है। सो Z जो है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन द कॉलम, the Coulombic Faraday's constant, ठीक है, F जो है Faraday constant, राइट। तो Faraday constant की वैल्यूज आपको पता है, वो हमने दे दिया है। नाउ इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू the molecular weight upon n. N is the number of equivalent, where n is the number of equivalent. Number of equivalent का मतलब क्या है, नंबर इक्विवेलेंट का मतलब है कितनी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और कितनी इलेक्ट्रॉन गेन किया है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ठीक है, वही है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। सो उस प्रोसेस में मोलिकुलर वेट अपॉन n जो है वो आपका इक्विवेलेंट वेट है, राइट। सो देयरफॉर इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू M अपॉन NF इंटू IT लिख सकते हैं, M अपॉन NF इंटू Q लिख सकते हैं, इवन इक्विवेलेंट अपॉन F इंटू Q भी लिख सकते हैं, और इंटू और ये भी लिख सकते हैं सॉरी F इंटू IT लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो सेम टाइप की इक्वेशंस है, क्लियर? यस सर, इसमें जो स्मॉल वैल्यू होगा यूज एनोड पर करेंगे क्या? नो, इसमें पोटेंशियल नहीं देंगे आपको। पोटेंशियल दिया होगा तो आप उस प्रोसेस को देख सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन देंगे किस टाइप में किस साइड में रिडक्शन हुआ है, किस साइड में ऑक्सीडेशन हुआ है, वो देख सकता है, या आप अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ देगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, क्योंकि हमने एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करना है, हमने केमिकल रिएक्शन करवानी है। तो इसीलिए इसमें जो है हमारी पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल जो है एनोड कैथोड की पोटेंशियल नहीं देंगे इसमें, ठीक है। और देता भी है तब भी आप रेफ लाइट जो है उसकी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कौन सा टर्मिनल में रिडक्शन कराना है, कौन सा टर्मिनल ऑक्सीडेशन कराना है, वो वहां देंगे, ठीक है। यस एक और किसने बोला था कि पूजा जी कुछ पूछना चाहते हैं। पूजा दो हैं, कौन सा पूजा? पूजा पटेल लिखा था, पूजा पटेल। यस पूजा जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी पूजा जी, आर यू देयर ऑनलाइन? यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। पूजा जी अभी हैं आप, नहीं हैं? आई डोंट थिंक सो। यस sir, I am not asking to repeat, my question is others. Yeah, I understand. Pooja ji, are you there in the meeting? So you can ask your question. I am just मैंने अनम्यूट किया है आपको। एग्जाम्पल बताइए। हाँ ठीक है मोनिका, आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट, नो प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट सुजाता, इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता ही है कि भाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू द मोलिकुलर वेट अपॉन n, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट मतलब जैसे कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस, दैट विल बी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो
Yes, okay, no problem. Let me talk about the questions. Determine the time required to deposit 100 grams of aluminum at a current density of 125 ampere in electrolysis of aluminum oxide, it's alumina, in the solvent sodium aluminum chloride, ठीक है, and assuming that deposition of aluminum is only cathodic reaction. ठीक है, एल्यूमिनियम मतलब कैथोडिक साइड में है तो ऑब्वियसली मेटल डिपोजिशन होंगे। तो इसको हमारे पास करेंट दे रखे हैं और इसको हम निकाल सकते हैं। सो रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम 3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे सो दैट इट कैन डू रिडक्शन। 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा, इसको कहते हैं डिपोजिशन। ओके, नाउ ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम जो हैं इसके अंदर क्या रिएक्शन है, कितनी इलेक्ट्रॉन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, ठीक है। सो देयरफॉर योर n वैल्यू विल बी 3, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो कहते हैं n3। सो कितनी वेट 100 ग्राम की जरूरत है, कितना टाइम लगेगा पूछ रहे हैं, तो W इक्वल्स टू ZIT, क्योंकि एक तो करेंट दे रखा है, टाइम निकालना है, Z आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो W उसने दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, और I आपका दे रखा है 124 एम्पियर, ठीक है। और हमारा Z निकालना है, Z जो है इक्विवेलेंट अपॉन F है। सो E इक्विवेलेंट कितना है एल्यूमिनियम का 27 मोलिकुलर वेट है, इनटू 3 है N और 96500 कॉलम परसेंट मोल है, ठीक है। सो देयरफॉर तुम्हारा टाइम क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू W अपॉन Z इंटू I, दैट इज 100 ग्राम अपॉन ये हो जाएगा आपका 27 ग्राम अपॉन 3 इंटू 96500 इंटू 124 एम्पियर। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी, कितना सेकेंड्स आएंगे, आप पूरा कैलकुलेशन आप करिए। सो 100 इंटू 3 इंटू 96500 अपॉन 27 इंटू 124, सो ये आएगा 85,777 सेकेंड्स, हमने सेकेंड्स की फॉर्म में निकाले हैं, ठीक है। तो इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2.38 आवर्स आएगा, ठीक है। आवर्स कैसे कन्वर्ट करोगे, आवर्स में 8,
0.5777 अपॉन 3600 से करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा। क्लियर? यस 125 है 20 हाँ 25 लिखो, सॉरी। यस 125 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। ओके यस ओके गुड सर। 24 कहाँ से आया? मोलिकुलर वेट है एल्यूमिनियम का। स्वाति 27 जो है एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट है। ठीक है, वो बेसिकली देता है एग्जाम में जनरली, और नहीं देता है तो आप लोग तो कुछ मोलिकुल की याद तो है ही। कॉपर, सिल्वर, सिल्वर का 107.9, कॉपर का 65.5, तो थोड़ा कुछ याद है वही से यूज करें, जनरली देता है एग्जाम में। 187 सेकेंड्स आ रहा है सर। 177.7 आया होगा, सॉरी 177.7 आया होगा। 77 मान के चलो, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, ठीक है। 8,577.7, ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम। 58577, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट कैन बी ऑल्सो यूज। यस ओके, should I go ahead? Okay, let me also do another yes, बार बार आप लोग चेक कर रहे हो। ओके नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एफिशिएंसी निकालने वाला करते हैं। सो व्हाट इज द efficiency of the electrodeposition process when electrolysis of a solution of copper sulfate for 30 minutes using 10 ampere current produce 111.2 gram of copper metal on the cathode। ठीक है, कैथोड साइड में दे रहा है। नाउ अगेन यहाँ पे हमारा सॉल्यूशंस क्या होगा? कॉपर का रिएक्शंस आपको पता होना पड़ेगा। कॉपर की रिएक्शन, क्योंकि कॉपर डिपोजिशन हो रहा है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो सेमली n इक्वल टू 2 और हमारा W इक्वल्स टू ZIT। Z क्या होगा? Z यहाँ पे 63.5 कॉपर की हैं, इलेक्ट्रॉन 2 है, इनटू I कितनी है? 10। ठीक है, I कितनी है? 10 एम्पियर है, और हमारा आवर्स 60 मिनट्स है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करो, 60 इंटू 60 मिनट में हो जाएगा, अपॉन 96500। सो यू आर गेटिंग 11.84 ग्राम। ठीक है, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है। इफिशिएंसी निकालना है तो क्या होगा? देयरफॉर द एफिशिएंसी
इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी क्या है कि एक्चुअली डिपॉजिट कितना हुआ है, वेट एक्चुअली डिपॉजिटेड एंड अपॉन द वेट कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, हमारी जो रीडिंग उसमें दे रखा है और हमने जो निकाली है कैलकुलेशन करके वो 11.84 ग्राम, जिसका मतलब क्या हुआ, इनटू 100 ये होगा, परसेंटेज निकालना है एफिशिएंसी का। सो देयरफॉर दिस विल बी 94.5% रिडक्शन जो हो रहा है उसकी एफिशिएंसी इलेक्ट्रो डिपोजिशन का, ठीक है। सो दिस वे यू कैन डू efficiency of your electro deposition process. Clear? Right? So now coming back to question, next point जो है वो है फैराडेस का सेकेंड लॉ। अभी आप लोग क्वेश्चंस हैं तो अभी बाद में लूंगा। लेट मी कंप्लीट दिस प्रोसेस, आफ्टर मे बी 20 minutes आई टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस हैं तो लेट इट बी देयर एंड कीप इट फॉर योर टर्न, ओके। सो फैराडेस का सेकेंड लॉ, फैराडे के सेकेंड लॉ के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी राइट टू डिफरेंट लैंग्वेज हियर, ठीक है। इसमें जो है आपको मैं दोनों देता हूं क्योंकि कोई भी बुक्स में अलग अलग दे सकता है। सो लेट मी गिव यू टू। सो व्हेन सेम क्वांटिटी of electric current is passed for same time through two or more electrolytic solutions, the mass of chemical substance deposited or altered at their respective electrode is in the ratio of their equivalent weight of chemical substance। मतलब जो भी सेम क्वांटिटी और सेम टाइम में हम ट्रांसफर एक्सपोज करेंगे सॉल्यूशन को, तो उसकी अमाउंट जो डिपॉजिट होगा, मास जो है वो उसकी इक्विवेलेंट वेट में डिपेंड करेंगे, ठीक है। अलग अलग इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से अलग अलग करेंट्स ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा जो ये तो फर्स्ट हो गया डिफिनीशन। सेकेंड जो है वो दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो है मास ऑफ the different chemical substance produced at the electrode
at the electrode during the electrolysis are directly proportional to their equivalent weight. ठीक है, ये सेम मीनिंग है दोनों का। मैथमेटिकली हम इसको कैसे मेजर करेंगे? सपोज हम एक, लेट मी जस्ट शो यू विद द एग्जांपल। मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट को, ठीक है, दोनों को मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। सो इसका मतलब वेट ऑफ सिल्वर विल बी ZAgIT होगा, क्योंकि टाइम और करेंट तो सेम है। सो W कॉपर इज इक्वल्स टू Z कॉपर IT होगा, टाइम और करेंट तो सेम है। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट दोनों का वेट, मास जो है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो ये लिखा जाएगा ZAgIT अपॉन Z कॉपर IT। अब नाउ IT तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा Z सिल्वर एंड Z कॉपर। दिस इज बेसिकली द आइडिया, ठीक है। इसको हम इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिक आइडिया अबाउट द सेकेंड लॉ। दोनों की मास की रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इक्विवेलेंट वेट के साथ, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए। क्लियर, राइट? नाउ let me talk about how we use this to calculate the system. इस बार गेट में भी एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आज कराऊंगा। So the question is an electrolysis of silver nitrate and copper sulfate systems for same time. 12.7 gram of copper is deposited at its electrodes, ठीक है। What will be the mass of silver to be deposited at its electrodes, ठीक है। इसमें जो गिवन है एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर का है 63.5 ग्राम एंड एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर जो है वो है 107.8 ग्राम्स, ये गिवन है। ओके, सो
we can do solve this problem by using second law. So equivalent weight कितना होगा? Equivalent weight for copper का, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है 63.5/2 क्योंकि 2+2 आयंस हैं, सो इक्विवेलेंट वेट इतना होगा. सपोज इक्विवेलेंट वेट 1, ठीक है. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा? 107.8, क्योंकि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो आपका इक्विवेलेंट वेट 2 होगा. सपोज ऐसे ही नोटेशन हम दे सकते हैं कॉमनली. सो नाउ W सिल्वर अपॉन W कॉपर इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट 2 अपॉन E इक्विवेलेंट 1, राइट. सो इसका मीनिंग क्या है? इसकी वैल्यूज आपका 107.8 है इनटू क्या होगा? इनटू सॉरी ये है इनटू कितना है? 63.5/2 है, ठीक है. नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दिस कि W सिल्वर का निकालना है 107.8 इंटू 2 इंटू इसका कॉपर का वेट ऑलरेडी पता है. कॉपर का वेट है 12.7 अपॉन आपका 63.5, सो दिस इज 43.12 ग्राम, ठीक है, सिल्वर का. सो दिस इज वे यू कैन कैलकुलेट द प्रोसेस एंड यू कैन डू ऑल दिस कैलकुलेशन. क्लियर? नाउ लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट फ्यू मोर एग्जाम्पल. अलग अलग टाइप का मैं कोशिश करता हूँ. सपोज आपका एक और सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं. लेट मी जस्ट चेक whether it's there or not in your. थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मैं आपकी इस क्वेश्चंस को देखता हूँ. Anyway, let me calculate it. So next is a solution of 2 gram of brass is electrolyzed for copper deposition using platinum as an electrode. The weight of electrode is changed from 14.5 grams to 16.5 grams. Is the percentage weight of copper in brass? Okay, now can you see the screen?
Yes. Okay, thank you. So your तो यहाँ is 2 ग्राम, ठीक है। चेंज इन प्लाटिनम में कितना है? चेंज इन वेट इन प्लाटिनम जो है वो है 16 भी कर सकते इसको। जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट अ मिनट। हेलो, yes, now I'm sorry, there are some disturbance in the, okay, I'm sharing again. Now can you see the screen? अरे कहाँ चला गया? Where's the screen? Yes. Just a minute. कहाँ चला गया? Why these internet issues are? बच्चे just hold down. जस्ट होल्ड डाउन। मेरा जो स्क्रीन है ना, ये यहाँ मेरे को नहीं दिख पा रहा है, ये कुछ ब्रेक सा लग रहा है। जस्ट चेक, स्क्रीन पोस्ट किया गया है, स्टॉप स्क्रीन। व्हाई दिस स्क्रीन is visible properly? या आई एम डूइंग, वही ब्रेक दिख रहा है, इसलिए मैं आई एम जस्ट चेकिंग। सॉरी। ओके ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट, यहाँ पे एक चेंज कर दूंगा 16। सो मैं 16 माइनस 14.5 grams. So this is what you are getting. कितना आ रहा है? 1.5. Okay, so you are getting 1.5 gram. So then हमारा डिपोजिशन कितनी है? What is the deposition? डिपोजिशन जो है वो 1.5 ही है। So deposition of copper
is 1.5 ग्राम और टोटल ग्राम कितना है? टोटल ऑफ ब्रास तो ऑलरेडी हमारे 2 ग्राम्स है. सो देयरफॉर परसेंटेज weight of copper is equals to 1.5 grams upon 2 grams. 2 में से आपको 1.5 आ गया है, so 100. So it is equals to 75%. So 75% जो है आपका इलेक्ट्रोड डिपोजिशंस हो रहा है. ठीक है. So what is the weight percentage of the copper deposited is nothing but 75% of copper in the brass. ठीक है. So इसी तरह you can easily do calculate all these questions. Now let me talk about गेट का 2020 वाला जो क्वेश्चन है, वो गेट के 2020 में क्वेश्चन जो आया था है क्वेश्चन नंबर 46 है. Whether you have this question or not, I am not sure, but let me just share with you. ठीक है. इसमें लिखा गया है in an electrochemical cell, ठीक है. The I think this is 21 है 21 अभी जो हुआ है लेटेस्ट वाला है, ये 20 है या 21 है, आई एम नॉट श्योर. 2021 होगा ये तो अभी जो हुआ है रिसेंटली. सो सिल्वर आयन इन silver nitrate are reduced to silver metal at the cathode, and copper is oxidized to copper positive 2 at the anode. ठीक है. Now a current of 0.7 ampere is passed through the cell for 10 minutes. 10 मिनट के लिए पास किया है. ठीक है. So the mass in grams of silver deposited and copper dissolved. ठीक है. रेस्पेक्टिवली आर, मतलब ऑक्सीडाइज कितना हुआ है और रिड्यूस कितना हुआ है, उसके बारे में दोनों पूछा गया है. और गिवन में क्या है, फराडेस की वैल्यूज दे रखे हैं 96485 कॉलम पर मोल, और एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर जो है वो है 63.55 ग्राम, और सिल्वर का दे रखे हैं 107.9 ग्राम. ठीक है. सो सिमिलरली इसको भी हम निकाल सकता है. ये बहुत सिंपल वही लॉजिक से आया है कि WAG जो डिपॉजिट हुआ है वो ZIT होना चाहिए. Z के वैल्यू कितना होगा, इक्विवेलेंट अपॉन F होंगे इनटू IT है. सो आपका 107.9 है और 96485 कॉलम पर मोल है. ठीक है. इनटू I कितना है
0.7 है और कितना है 10 इंटू 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. सो दिस विल कमिंग आउट टू बी WAG जो रिड्यूस हुआ है ये है 0.469 है. सिमिलरली कॉपर ने डिजोल्व कितना हुआ है ZIT डिजोल्व मतलब लॉस कितना हुआ है तो अगेन इक्विवेलेंट वेट अपॉन F इंटू IT. इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका है 63.55 अपॉन 2 होगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 है इंटू 96485 कॉलम पर मोल into again 0.7 into 10 into 60. ठीक है. So therefore you are getting W copper is 0.138. ठीक है. इसीलिए आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4 होंगे. इस क्वेश्चंस की जो आंसर होगा आंसर 4 होंगे ऑप्शन. ठीक है. That's why this is correct. इज इट ओके. ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है. ठीक है. सो फॉर टुडे लेट मी स्टॉप हियर. लेट मी टेक द क्वेश्चंस. ओके यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट ड्यूरिंग टुडेज लेक्चर. यस मनप्रीत यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. यस मनप्रीत क्वेश्चन पूछिए आप. सर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली सेकंड एग्जांपल थी वो वाली एक्सप्लेन करना है एक बार. Where is my cursor? सेकंड वाली कौन सा है बच्चे? ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं सर ये नहीं सर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ओके ओके हाँ 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 यस यस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl. हाँ यस 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 हाँ ये वाला. हाँ बताइए. यस सर. सर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार बता देना. इसमें मैंने क्या किया देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था. सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है एनोड के ऊपर हाइड्रोक्सिल जो है 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया. ठीक है. और ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ और वाटर बना. ठीक है. उसका पोटेंशियल इतना है. कैथोड में क्या हुआ कैथोड में हाइड्रोजन इवोल्यूशन हुआ और हाइड्रोक्सिल बना उसकी इतना है. सेल पोटेंशियल भी हम निकाल सकते हैं माइनस है. इसका मतलब क्या नॉन एक्सपोंटेनियस है. मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इटसेल्फ इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन एक्सपोंटेनियस प्रोसेस कि आपकी एक्सपोंटेनियस में हो सकता है वो तो गैल्वेनिक प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपकी रिएक्शन प्रोसेस कराते हैं. ठीक है. वो ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं हो सकता है. इसलिए ये नॉन एक्सपोंटेनियस प्रोसेस को भी मैंने प्रूव किया क्योंकि सेल पोटेंशियल निकाल के और उसके थ्रू ये रिएक्शन किया है. इसमें मेजर जो पॉइंट है एक तो एनोड में क्या हो रहा है ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है. कैथोड में हाइड्रोजन इवोल्यूशन होता है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. क्लियर. यस सर. सर जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन था हमने किया था जिसमें माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में माइनस आ रहा था. हाँ तो सर हाँ वो प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वो पॉसिबल नहीं है. तो यस यस. आप एक्सपोंटेनियस मतलब एक्सपोंटेनियस प्रोसेस की कॉन्सेप्ट में कहेंगे जैसे नेगेटिव आ रहा है तो आप बोलेंगे ये एक्सपोंटेनियसली हो नहीं सकता है. यस सर. थैंक यू सर. ओके. नेक्स्ट इज ओप्पो. नाम क्या है ओप्पो? पूछिए आप. ओप्पो रेनू. Sir, can we leave the class? या थैंक यू. Okay, thank you, sir. Okay. Yes. Anyone want to ask the questions? सर एक बार सेकेंड लो रिपीट करिए. ठीक है. सेकेंड लो बच्चे जो इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो सिस्टम में जो है आप सेम आपका जो है वो ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो कितना मेटल डिपॉजिट होगा और जो डिसॉल्व होगा वो उसकी इक्विवेलेंट वेट में डिपेंड करेंगे. ठीक है. इसका मीनिंग है सपोज जैसे मैंने अब सिल्वर और कॉपर को दोनों किया है
तो दोनों का सेम करेंट ट्रांसफर हुआ है, सेम टाइम में ट्रांसफर हुआ है, बट ये लोग की इक्विवेलेंट वेट में डिपेंड करेगा कितनी रेशियो मास डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, यही रिलेशन मैंने WAG अपॉन WUCU इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर ये लिखा है। ठीक है, यस। पूजा वांटेड टू आस्क। यस पूजा, यू कैन आस्क, अनम्यूट। हेलो सर। यस पूजा। सर आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रहे थे तो सर आपने बताया था ना सोडियम मेटल इस प्रोसेस से। हेलो, आपका आवाज कट गया। यस बच्चे, आपकी डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ हाँ, अभी आ रहा था, बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। सर वो थोड़ा सा बता देंगे प्रोसेस, सर कैसे सोडियम मेटल को सर इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम मेटल जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो बताया है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे मान लो आपके पास सोडियम क्लोराइड की सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन को डालेंगे, जनरली सोडियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी डालते हैं क्योंकि मिक्सचर आता है। जैसे आप सी वाटर है, सी वाटर में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है क्योंकि मिक्सचर्स हो सकते हैं। ठीक है, बट मान लो सपोज मिक्सचर हो ना हो, आप सोडियम क्लोराइड है सपोज, सोडियम क्लोराइड को आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर करेंगे, तो सोडियम जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। सोडियम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डिपॉजिट करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल डिपोजिशन। तो ये सोडियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, क्योंकि सोडियम यहाँ डिपॉजिट यहाँ पे ऊपर नहीं कर सकते, सोडियम मेटल नीचे चला जाएगा, ये सारे मतलब प्रैक्टिकल सेंस में कह रहा हूँ मैं, सारे नीचे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है आउटलेट होगा, उस आउटलेट के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। तो इसकी बहुत बड़ा प्रोसेस है। आपने कभी पढ़ा है इनऑर्गेनिक में, आपके पास जेडिली है, I could not see you here because I have limited book here. तो मेरी अभी इसी जगह पे मैं अभी रह रहा हूँ। अदरवाइज इवन डू यू हैव अ जेडिली बुक पूजा? यस सर। हाँ, जेडिली बुक में मेटल एक्सट्रैक्शन करके एक यूनिट होगा, आई थिंक यूनिट 8-9 जो भी है आपका, जो है फर्स्ट ग्रुप जो आपकी सोडियम आयन और इसकी ग्रुप की एक्सट्रैक्शन, वहाँ पे आप एक बार सोडियम का देखना, वहाँ पे एक पिक्चर दिखा होगा, वो इसी प्रोसेस के थ्रू है। जब इंडस्ट्रियल स्केल में जब निकालोगे तो कैसे सेटअप बनाते हैं, वो सब उसी जेडिली की बुक का जो है, उस मेटल एक्सट्रैक्शन वाले में सोडियम वाला पार्ट को आप देखिएगा, उसमें आपको ये जो यही प्रोसेस वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल में कैसे बना के यूज होता है वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, राइट नाउ आई डोंट हैव दैट सॉफ्ट कॉपी, otherwise I can show you, but you can, if you have ZDL today itself after the class, you can just go through it. ठीक है, ओके सर। हाँ प्रोसेस सेम है। यस। ओके, यस। एनी अदर क्वेश्चंस? Any other questions? If student, ओके सर, थैंक यू। okay, thank you. Last class the PDF not available. Okay. I have shared it, but I have shared little late, but no problem. I'll share again. I see. I will share it. Okay. So if there is no question, then let me stop here. Yes. दिव्या, हाँ दिव्या बताइए, दिव्या, दिव्या का है, यस दिव्या अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। यस दिव्या बताइए। सर मुझे गेट का जो आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया ना सर, मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, डाउट हो गई सर, वही। हाँ बोलो 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 बोलो। सर उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया, हम्म, वो तो हमें पता चल रहा है कि ये विदाउट ट्रांसफरेंस है सर। हाँ हाँ सर लेकिन हमने विदाउट ट्रांसफरेंस में कंसंट्रेशन, सर विदाउट ट्रांसफरेंस इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं है सर, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। सर उसके पहले भी तो हमने एक वो पढ़ा था जिसमें विदाउट ट्रांसफरेंस था सर, उसमें तो RT/2F ln A1/A2 ये वाला फॉर्मूला था।
वो भी तो विदाउट था, ये भी विदाउट है, तो फिर सर हमने यही वाला क्यों यूज किया? तो मुझे समझ नहीं, वो सेम है, दोनों सेम है, सेम प्रोसेस है। मैंने A1 अपॉन A2 जो है मैंने यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा है, दैट्स ऑल। सर अगर हम RT अपॉन 2F ln A1 अपॉन A2 मतलब रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, RT अपॉन 2F ln रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, यही होगा ना सर? ये भी यूज कर सकता है सर जो आपने विदाउट हाँ, आप इसमें ना या माइनस को हटाओगे तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट आएगा। और सर नीचे जो माइनस साइन, सर नीचे 2F, सर आपने पहले 2 भी कराया था, हाँ, P1 अपॉन P2 वाले में कराया था बेटा। 2F इसलिए कराया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन 2 यूज किया है, तभी 2F कराया था। आप कौन सा वाला बोल रहे हैं, बताइए। मैं सर जब आपने कंपोजिट सेल कराया था, कंपोजिट सेल के ऊपर आपने एक कराया था ना, कंसंट्रेशन सेल हैविंग इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज विदाउट ट्रांसपेरेंस में। यस हमने अपॉन 2 लिखा था। वो 2 इसलिए लिखा था, 2 इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 इसलिए लिखा था। हाँ बेटा, जो 2 जो लिखा था ना, वो आपका क्योंकि हाफ था, आपने क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस की पावर जो है 1/2 आया था, क्योंकि हमारी रिएक्शन कैथोड में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन का 1/2 था, इसलिए 2 आया है। मगर यहाँ पे तो मेटल है ना, ये मेटल आयन की सॉल्यूशंस हैं, तो यहाँ इसमें 2 आएगा नहीं। अगर जिससे मान लो जैसे मैं यहाँ लिखूं हाफ ऑफ हाइड्रोजन और ये लॉस करते हैं हाइड्रोजन में, तो ये 2 आएगा, ये क्योंकि 1/2 के हिसाब से 1/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ इस मेटल आयन में ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए आपने रिएक्शन के हिसाब से डिराइव करना है। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था इसलिए 1/2 आ रहा है, मगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं हो गया तो जो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हमने वो ऐसे करी है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, यस डेफिनेटली। सर मुझे एक चीज में और डाउट है सर, प्लीज एक बार रिवर्सिबल टू कैटायन एंड रिवर्सिबल टू एनायन समझा दीजिए, क्या मतलब है इसका? रिवर्सिबल टू कैटायन, रिवर्सिबल टू एनायन का मतलब यही है कि जैसे मैं हाइड्रोजन वाला ले लूं तो ये जो पोटेंशियल है, या मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं तो पोटेंशियल किस में डिपेंड करेंगे? -RT अपॉन F ln हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, यही लूंगा ना। और ये सपोज ये 1 एटमॉस्फेयर है तो अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इस आयन में डिपेंडेंट है, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोड को लेंगे तो ये इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे रिवर्सिबल टू कैटायन। क्लियर? मतलब उसको चेंज करने से चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोड। हाँ। तो मान लो एनायन में होता है तो एनायन जो है एनायन में डिपेंडेंट है, तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू एनायन, ठीक है। ओके सर क्वेश्चन में कैसे हम पहचानेंगे? वो इक्वेशन जो हमें दी रहेगी सेल रिप्रेजेंटेशन, वैसे पहचानेंगे कि एनायन टू रिवर्सिबल? हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन रिएक्शन देख के पहचानेंगे, रिएक्शन और उसकी रिएक्शन में बेस करके जब नर्स इक्वेशन आप डिराइव करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कैटायन में डिपेंडेंट है या एनायन में डिपेंडेंट है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। आई थिंक someone also raised his hands. Let me, yes, next. तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो रिएक्शन देखो, ये जो गिवंस इलेक्ट्रोड है दोनों जो सेमीपार्मेंट मेम्ब्रेन से डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, तो इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट होगा तो एक इलेक्ट्रोड में चेंजेस होंगे और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट में चेंज होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में 2 होना चाहिए था, कैटायन और एनायन, मगर यहाँ लिखा गया है कि मेम्ब्रेन जो है सिर्फ कैटायन को ही मूव कराता है, तो एनायन का ही पोर्शन आपको लेना है, कैटायन का ही पोर्शन आपने लेना है माइग्रेशन में। तो हमने सी माइग्रेशन वाला दिखाया है, कॉमन टर्म कैंसिल किया है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी ट्रांसफर हुआ है, फिर उससे उसी बेसिस पे
हमने नर्स इक्वेशन डेवलप किया है। सो नर्स इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, आपके आ जाएगा। नाउ इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये ट्रांसफर जो है लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, यस, एनी अदर डाउट? Okay, so should I stop here? Yeah, thank you.